So, good morning, a very pleasant morning to you all. So, how are you today? I hope you all are good, you all are feeling safe at your home, you all are fine. So, today in this video, we are going to learn about your next topic from the kingdom fungi, that is the division or the groups, different groups of kingdom fungi. In the previous session, we learned about kingdom fungi characteristics. So today in this lecture we will discuss about the different groups or different divisions of kingdom fungi. You know very well that in the previous session we discussed about the characteristic of fungi, and we know very well that what is fungi, what are fungi. So let's get started with a new topic, that is the division of kingdom fungi. So we have to, because we know very well that we have divided the kingdom fungi, so what are the different basic characteristics where we are dividing the kingdom fungi? What are the basis, what are the basic characteristics that why we are dividing the fungi? So here are some characteristics. You can see over the screen the 3 lines over just above the Phycomycetes heading. So what are these? The morphology of the morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. जो different classes we are dividing here. So वो क्या है, किस बेस पर हमने डिवाइड कर दिया है फंजाई को? वो है माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी किस तरीके का वो है, सिनोसाइटिक है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है, तो किस तरीके का है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है, एंड अगर हम बात करें फ्रूटिंग बॉडीज की, जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है जहाँ पे स्पोर्स होते हैं, तो वो कैसी होगी या किस शेप की होगी. सो डिफरेंट शेप्स आने वाली है यहाँ पर. सो उसके बेस पर हमने किंगडम को we have divided kingdom into different classes or different groups. So first group is, that is Phycomycetes. Before going further, just I want to tell you about what are the 4 classes of the kingdom fungi. So first is Phycomycetes, second will be Ascomycetes, third will be Basidiomycetes, and the last one will be Deuteromycetes. So now we are starting with the first class, that is Phycomycetes. Okay, so what are the different characteristics of the Phycomycetes? If I want to ask from you, so that is, you can see over the screen, the topic is Phycomycetes. The members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, or as obligate पैरासाइट ऑन प्लांट, यानी कि अगर इसकी एक्वाटिक मिलते हैं, पानी में मिलने वाले होते हैं, डीकेइंग वुड जो बेकार हो जाती है, वुड डीके हो जाते हैं, सड़ जाती है, उनके ऊपर ये मिलते हैं, जो कि मोस्ट एरिया में मिलते हैं देखने को. क्योंकि आपको पता है जितने भी फंजाई हैं, जितनी भी फंजाइज आपको मिलेंगे, फंगस मिलेंगे, वो ज़्यादातर डैम्प एरिया में ही मिलते हैं, मॉइस्ट एरिया में ही मिलते हैं देखने को. ओके, सो ये एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट वाले नेचर के भी होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पैरासाइटिक नेचर को ही शो करते हैं. तो पैरासिटिक नेचर वो शो करते रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर बीमारियां करते रहते हैं. सो द माइसीलियम इज एसेप्टेट. मान लीजिए ये दिस इज हाइफा, मैं नेटवर्क नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर. सो ये हाइफा है, अगर मैं इसकी बात को इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स सेप्टेट. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, फाइकोमाइसीट्स के जो माइसीलियम है वो होते हैं एसेप्टेट. एसेप्टेट का मतलब कि सेप्टास ये जो मैंने बनाए हैं ये नहीं होते. ओके, सो सिंपल तरीके के इनके लाइक दिस, ये क्या है, माइसीलियम. सो एसेप्टेट माइसीलियम है और सिनोसाइटिक है, क्योंकि आपको पता है कि काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट, तो सिनोसाइटिक है. अगर मैं इसमें न्यूक्लियस बनाता जाऊं काफी सारे, सो सिनोसाइटिक माइसीलियम हो जाएगा. सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं. और फिर आता है हमारा एसेक्सुअल, की रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल किस तरीके से होता है, या वेजिटेटिव. सो फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स. देखो जू स्पोर आ गया है, तो जू स्पोर का मतलब है क्योंकि जू लग गया यानी एनिमस, और एनिमस मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, तो इसलिए जू स्पोर्स कैसे हैं, मोटाइल स्पोर्स हैं. या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर के साथ साथ एप्लानोस्पोर भी वहां पर होते हैं, जो कि होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स. ओके, जो मूवमेंट नहीं कर सकते. सो दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली
प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम होती है, एक स्पोरेंजियम है मान लीजिए, और इसके अंदर अगर मैं लगा दूं यहाँ पर सारे स्पोर्स, जो स्पोर्स है, जो भी स्पोर्स हैं, सो उसके अंदर स्पोर्स ये बंद यानी एंडोजिनसली का मतलब अंदर की साइड होते हैं, जहां एंडोजिनसली का मतलब कि फॉर्मेशन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज, तो अंदर की साइड से हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एंडोजिनसली। ओके, अंदर की तरफ ही रहते हैं, बाहर की साइड से नहीं दिख सकते। सो फिर आता है जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब टू गैमेट्स एक साथ मिलते हैं तो वहां पर बन जाता है जाइगोस्पोर्स। ओके, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दीज गैमेट्स, जो अभी जाइगोस्पोर्स बने हैं, जो ये जो बने थे, जिन तो किसकी वजह से बने थे, गैमेट्स की वजह से बने थे, टू गैमेट्स की वजह से बने थे। तो होगा क्या कि ये जो गैमेट्स होंगे ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए दोनों का साइज सेम है, दोनों दिखने में सेम है, दैट मीन्स कि मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो गई, तो ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमस। आइसो मतलब सिमिलर, और अगर डिसिमिलर है यानी छोटे बड़े हैं गैमेट्स, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर नहीं है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं एनाइसोगैमस या ऊगैमस। ओके, सो आइसो मतलब सिमिलर गैमेट्स वाले जो होंगे वो गैमेट्स होंगे, और बाकी एनाइसो यानी कि जो सेम नहीं है। सो कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे कि आपने देखा है ब्रेड के ऊपर मोल्ड लग जाती है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोल रहे हैं, जो क्या है राइजोबस, नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। म्यूकर एक इसका एग्जाम्पल है, और एल्बुगो जो कि एक पैरासिटिक फंजाई है, जो कि मस्टर्ड के ऊपर बीमारी करता है, येलो येलिश कलर देखा होगा आपने, वहां पे बीमारी लग जाती है। सो वो क्या है, पैरासिटिक फंजाई है, जो कि होता है एल्बुगो। ओके, सो ये थी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइकोमाइसीट्स। नाउ वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट क्लास, दैट इज एस्कोमाइसीट्स। देख लीजिए, क्योंकि नेम से ही क्लियर है। अभी आपने म्यूकर की स्ट्रक्चर देखी है, ये है एक फाइकोमाइसीट जो कि है म्यूकर, जो कि खतरनाक फंजाई होता है। सो नेक्स्ट आता है आपका एस्कोमाइसीट्स। आप देख लीजिए यहाँ पर एस्कोमाइसीट्स लिखा है, एस्को यानी गेस, जहां पर भी एस्को अगर आ जाता है तो वहां पर हम सेक फंजाई की बात करते हैं। सेक फंजाई, SAC, सेक। सेक मतलब आपको पता है कि थैली, एक तरीके से एक थैली लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, ऐसे भी हो सकती है वो, या इस शेप की भी वो अगर हो सकती है, तो सेक लाइक फंजाई इसके अंदर होती है। क्यों होते हैं अभी पता चलेगा कि सेक हम क्यों बोलते हैं इनको। सो एस्कोमाइसीट्स क्या है, सो कॉमनली कॉल्ड सेक फंजाई। सेक फंजाई क्यों, क्योंकि इनके अंदर होते हैं एस्को यानी एस्कस, और अगर इसका प्लूरल वर्ड लेकर चलें, क्योंकि तो सिंगुलर वर्ड है, एस्काई, जो कि अभी आगे आने वाली है। सो ये जो फंगस होती है, ये कैसी फंगस है, सेक फंजाई है ये। द एस्कोमाइसीट्स आर यूनिसेलुलर। अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो ये दोनों तरीके के एस्कोमाइसीट दोनों तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। देखो फाइकोमाइसीट तो मल्टीसेलुलर थे, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस भी है कि एस्कोमाइसीट यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो हमारा होता है ईस्ट, जो कि आप ज्यादातर सुनते हैं शराब बनाने के लिए, इन चीजों में यूज होता है, बर्गर बनाने में, सो ब्रेड बनाने में। और जो कि नॉर्मल एक का नाम है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी, जिसका पूरा नाम है। और मल्टी सेलुलर भी एस्कोमाइसीट्स होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होती है। सो पेनिसिलियम आपको पता है मल्टी सेलुलर, तो दोनों तरीके के एस्कोमाइसीट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो होता है दे आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं किसी चीज को। सेप्रोफिटिक आपको पता है कि डेड एंड डीके मटेरियल के ऊपर वो रहते हैं। पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासिटिक अगर इनकी बात करें तो बीमारियां भी करते हैं, दूसरे के ऊपर भी रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जैसे प्लांट के ऊपर। और एक नया टॉपिक निकल कर आया, एक नया टर्म निकल के आया यहाँ पर, दैट इज कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब कि वो फंजाई जो कि डंग के ऊपर रहते हैं, जो डंग यानी कि गोबर होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आता है माइजीलियम, कैसा है, एसेप्टिक है, सेप्टेट है या ब्रांच्ड, कैसा है, किस तरीके का है। तो माइजीलियम होता है इनका ब्रांच्ड, ऊपर लिखा है आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन। माइजीलियम कैसा है, ब्रांच्ड है। मान लीजिए मैंने एक माइजीलियम बनाया, सो इसी से फिर एक ब्रांच बनाई, देन इसी से एक ब्रांच बनाई, फिर इसकी एक ब्रांच बनाई, तो माइजीलियम होता है ब्रांच्ड और उसके साथ साथ सेप्टेट, यानी सेप्टास जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। ये हो गए हैं सेप्टास। ओके, सेप्टेट, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं माइजीलियम सेप्टेट। The asexual spores are conidia produced exogenously on special mycelium called conidiophore। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, दैट इज
अभी हमने पैलिसिलियम की बताई थी, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखती है इस तरीके की, और इसके ऊपर छोटे छोटे हमने स्पोर्स लगाए, कोनिडिया लगा दिए हैं ये। ओके, सो ये है कोनिडिया, ये है कोनिडिया, ये क्या है कोनिडिया, और अगर इसकी बात करूं तो ये होता है कोनिडियोफोर। ओके, ये है कोनिडियोफोर। सो स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि कोनिडिया, जो कि अगर एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो बनती है कोनिडिया, और कोनिडिया जो होती हैं वो बनती हैं किसके ऊपर लगते हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर। फिर आते हैं हमारा जो कोनिडिया है, जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सो जब कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, वो जो स्पोर बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी से निकलकर कोनिडिया से क्या बन जाते हैं, माइसीलियम न्यू बन जाता है। ओके, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। अगर हम सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि अभी एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से थे, कोनिडिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल स्पोर्स, तो वो होते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, क्या होते हैं वो, एस्कोस्पोर्स। अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा किस तरीके से। और विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस्काई। कैसे स्ट्रक्चर, देखो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक बॉडी है, एक पूरा स्ट्रक्चर है एस्कोमाइसीट का, तो इसमें मैंने किसकी बात की थी यहाँ पे, एस्कोस्पोर्स। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एस्कोस्पोर्स। ये है एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स यानी कि। फिर ये हमने यहाँ पर क्या बोला कि कैसे हैं ये, एंडोजिनसली हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़े होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो और फिर क्या हमने इसको बोला, एस्काई, यानी कि जो कि क्या है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है एस्कस। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps। अगर मैं यहां से लेकर कलर चेंज कर लेते हैं हम, अगर मैं यहां से लेकर इतनी बॉडी की बात कुछ स्ट्रक्चर की, तो इसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। यहां पर लिखा है देखो एस्कोकार्प्स। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज पूरी बन के आई है इसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। ये है हमारे एस्कोस्पोर्स, ये 1 2 3 4 5 5 बनाए मैंने यहाँ पर। सो ये एस्कोस्पोर्स हैं, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये होती है एस्काई। क्या है ये, एस्काई। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है किस तरीके की बॉडी, क्योंकि हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो हैं ये इस तरीके से एस्कोस्पोर्स होते हैं। एक्सोस्पोर्स ये हैं आपके, ये एस्कोस्पोर्स हैं, ये एस्काई है। ये पूरी बॉडी अगर हम इसकी बात करें फ्रूटिंग बॉडीज की, जिसके अंदर स्पोर्स हैं, एंडोजिनसली क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अंदर की साइड वो पैक्ड हैं, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर वो पैक्ड है, इसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका, दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। अभी देख लिया पूरी बॉडी को, फ्रूटिंग बॉडी को हमने बोला है एस्कोकार्प्स। फिर आते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि एस्परजिलस है फंगस, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। और ये जो न्यूरोस्पोरा होता है ये जेनेटिकल वर्क्स जो कि यूज करते हैं, बायोकेमिकल जो प्रोसेस होती है वहां पर जाकर ये यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट, मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स बफल्स आर इडिबल एंड आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। ओके, तो ये खाने पीने में यूज होते हैं, सो वो आपको कैलोरीज देते हैं, तो इसलिए हम उसको डेलिकेसीज बोला है। सो नेक्स्ट आता है थर्ड इज दैट इज बेसिडियोमाइसीट्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिडियोमाइसीट्स। देखो एस्कोमाइसीट्स आपको पता चल गया, अभी हमने सैक बोला था ना, एस्काई जो ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, तो पूरा एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना दी थी, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। इसलिए एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई बोलते थे, जो कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के होते हैं। फिर आते हैं आपके बेसिडियोमाइसीट्स। So what are the different structures of basidiomycetes? So commonly known forms for basidiomycetes are mushroom, आपने मशरूम देखा है, खाते भी हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। सो ब्रैकेट फंजाई दैट लुक लाइक अ ब्रैकेट, है ना, और पफ बॉल्स, जैसे पफ बॉल्स आप मान लीजिए रुई की एक बॉल बना दी, उस लाइक की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इनको हम पफ बॉल्स भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम बेसिडियोमाइसीट्स को हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। कौन सी फंजाई, क्लब, CLUB, क्लब फंजाई, क्योंकि इनकी शेप जो होती है ज्यादातर वो क्लब शेप होती है। आपने गदा देखी होगी, गदा जो होती है, आपने गदा देखी है ना, हनुमान जी की गदा। सो कुछ लुक लाइक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। आपने मशरूम भी देखी है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो आपने ये स्ट्रक्चर्स तो देखी हैं, तो इनको हम क्लब शेप भी बोलते हैं। तो याद रखना बेसिडियोमाइसीट्स की जो स्ट्रक्चर है वो हम क्या बोलते हैं इनको, ये होती हैं क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर वाले।
ओके मशरूम आपने जैसे कि याद रहेगी आपको, पफ बॉल्स वहां पर भी ऐसी होती है। सो दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स लकड़ी, लॉग्स मतलब लकड़ी, उसके ऊपर सॉइल के ऊपर, ट्री स्टम्प्स के ऊपर, लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के फॉर्म में ये मिलेंगे। रस्ट का और स्मट ये जो लगे होते हैं, बीमारियां लग जाती हैं प्लांट्स के ऊपर, स्मट और रस्ट, तो वो क्या हैं, वो हैं पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं वहां पर ये बेसिडियोमाइसीट्स। अगर हम इसके माइजीलियम की बात करें तो ब्रांच्ड होता है, ब्रांच आप पता है जिसकी ब्रांचेस हो सो और उसके साथ साथ कैसा है, सेप्टेड, जैसे कि पीछे भी एस्कोमाइसीट्स थे, सेम उसी की जैसे इसकी स्ट्रक्चर है, वो भी ब्रांच था और सेप्टेड था। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, जैसे कि ऊपर की साइड आपने एस्कोमाइसीट्स में कोनिडिया देखे थे, लेकिन इनके अंदर कोनिडिया नहीं है, दैट मींस कि एसेक्सुअल यूजुअली यहाँ पे नहीं होते। तो क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। कैसा, क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर है ही नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर होता क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो भी बाय फ्रेगमेंटेशन। जैसे मान लीजिए मेरे एक स्ट्रक्चर बनाए, ये एक बेसिडियोमाइसीट्स, तो ये यहां से अलग हो जाएगा, दोनों के दोनों अलग बेसिडियोमाइसीट्स का जो मेंबर है वो बन जाएंगे। ओके, फिर आते हैं इसके सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, तो फिर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा जब सेक्स ऑर्गन्स ही एब्सेंट है। तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका ये यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ओके, प्लाज्मोगैमी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर है आपका, या एक सोमेटोगैमी भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो प्लाज्मोगैमी आपको पता है, जहां पर प्लाज्मा के साथ रिप्रोडक्शन होता है, हाइफीज एक दूसरे के साथ मैच करते हैं और वहां पर रिप्रोडक्शन हो जाता है। या सोमेटोगैमी का मतलब होता है जहां पर सोमेटिक सेल रिप्रोडक्शन में यूज हो। सोमेटिक सेल, देखो बॉडी के अंदर दो तरह की सेल होती है, सोमेटिक एंड जर्म सेल। रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है, जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है, एक होती है सोमेटिक सेल जो कि सिर्फ बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर बॉडी की ग्रोथ वाली सेल यानी सोमेटिक सेल भी रिप्रोडक्शन में यूज हो जाती है। ओके, तो किस तरीके से होती होंगी फिर ये, तो हम इसको देख लेते हैं कि प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotype। मान लीजिए ये एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है, तो इनके बीच की ये जो सेल हैं, ये सेल हैं, ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन यानी फ्यूज कर जाती हैं। ओके, सो यहाँ प्लाज्मोगैमी हो जाती है या सोमेटोगैमी हो जाती है। स्पोर्स तो इनके नहीं थे। द रिजल्टेड स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। तो जैसे ही इनके बीच में ये क्योंकि आपको पता है प्लाज्मोगैमी होती है, और वहां पर पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है, एंड देन मियोसिस होता था। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे ही इनके बीच में ये प्लाज्मोगैमी होती है तो डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है। आपको पता है डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या था, डाई मतलब टू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिसके एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाए, तो वो वाली स्टेज आ जाती है, जिससे बन जाता है द रिजल्ट स्ट्रक्चर इस डाइकैरियोटिक फेज आ गई है, तो वो एक शेप बना लेती है जिसको हम बोलते हैं बेसिडियम। बेसिडियम यहाँ पर एक शेप बन जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो बेसिडियम बन गया है, मान लीजिए बेसिडियम कैसा बना है कि एक स्ट्रक्चर है, डाइकैरियोटिक बनाइए, एक ये और एक ये प्लाज्मोगैमी होगी, तो दो न्यूक्लियस आ गए हैं, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गया, दैट मींस कि डाइकैरियोटिक फेज आ गई है। और उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसिडियम बना लेगी, बेसिडियम बन गया है। बेसिडियम के बाद होगा क्या, अब होगी उसके अंदर कैरियोगैमी। आपको पता है कैरियोगैमी क्या होता है, कैरियोगैमी के बाद फिर मियोसिस होता है इन द बेसिडियम के अंदर ही मियोसिस, ये जो होने के बाद फिर बन जाते हैं वहां पर बेसिडियोस्पोर्स। जैसे कि मशरूम आपने देखी है, मान लीजिए ये छाता जैसी स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, तो ये बन गया, इसको हम बोलते हैं बेसिडियम। ओके, सो इस बेसिडियम जो स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर हमने क्या बोला है कि बेसिडियो फोर बनते हैं इसके अंदर की साइड। द बेसिडियो स्पोर्स, जो स्पोर बनेंगे, चार जो स्पोर्स बनी है बेसिडियो स्पोर जिसको हम बोल रहे हैं, इसके अंदर लगे होते हैं, आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम खोल के देखें तो वो इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को खोल के देखें तो वो इस तरीके से लगे होते हैं, इस तरीके से लगे हुए होंगे, ये स्पोर्स होंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनाई है 4 स्पोर्स हैं जो कि एक्सोजिनसली लगे होते हैं। मैंने जो छाता स्ट्रक्चर बनाया, अगर मैं इसको सीधा करूं तो इसके अंदर ये स्पोर लगे हुए होंगे, जो कि कैसे होंगे, एक्सोजिनसली, बाहर की साइड से दिखने वाले। सो ये जो बेसिडियम बने, स्पोर्स निकल कर आए हैं, तो बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। जो मैंने अभी आपको
पिक्चर बना के दिखाई है जिसके अंदर स्पोर्स थे, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हमको क्या बोल रहे हैं, बेसिडियोकार्प्स, बेसिडियोकार्प बोल रहे हैं हम इसको। सो द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स, जिसके अंदर स्पोर्स लगे हुए हैं, बेसिडियोकार्प्स लगे हुए हैं। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एग्रीकस यानी मशरूम, छाता जो होता है, सांप की छतरी भी कोई कोई इसको बोल देता है, एंड अस्टिलागो स्मट जो कि स्मट डिसीज करता है, स्मट कर देता है, एंड पक्सीनिया जो कि रस्ट करता है, बीमारियां करता है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया। और लास्ट आता है आपका डिट्यूरोमाइसीट्स, और डिट्यूरोमाइसीट्स एक ऐसा फंजाई है, एक ऐसी क्लास है फंजाई की जो कि होती हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट का मतलब जो कि पूरे तरीके से कंप्लीट फंजाई हम इनको नहीं कह सकते, इनकी स्टेजेस जो होती हैं वो हम इनको कंप्लीटली जान नहीं पाते, इसलिए इनको हम डिट्यूरोमाइसीट्स में रख देते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता है, यानी जिनके ऐसे फंजाई जिनके हमें सेक्सुअल स्टेज का ही नहीं पता, हमें नहीं पता सेक्सुअल स्टेज उनके अंदर कैसी होती है, सेक्सुअल स्पोर्स बनती हैं या नहीं बनते, मतलब हमें उनके बारे में नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इनके बारे में पूरी डिटेल नहीं पता है, दैट मीन्स कि इसलिए ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है इसका मतलब ये इम्परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट फंजाई वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो नहीं करते, इसीलिए हम इनको डाल देते हैं डिट्यूरोमाइसीट्स के अंदर। सो यहाँ पर लिखा भी है कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर फाउंड। ठीक है, सिर्फ इनकी एसेक्सुअल और एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ही इनकी हमको देखने को मिलती हैं। सो इसलिए यहाँ पे हमें बिल्कुल इनके बारे में परफेक्ट तरीके से जानकारी नहीं है कि हम इनको अलग करें। तो क्योंकि जिनकी हमें जानकारी क्लियर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इनको ना ही एस्कोमाइसीट्स कह सकते हैं, ना ही हम इसको बेसिडियोमाइसीट्स कह सकते हैं, ना ही हमको फाइकोमाइसीट्स कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको किसी एक अलग ग्रुप के अंदर ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिट्यूरोमाइसीट्स या इम्परफेक्ट फंजाई। ओके, सो होगा क्या, यहाँ पे कुछ लाइंस देख लेते हैं। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into the class they rightly belong to। यानी जब इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें फेज पता चल जाती है, तो हम इनको उसी के हिसाब से, मान लीजिए इसकी सेक्सुअल फेज हमें पता चल गई है, तो हम इसको बेसिडियोमाइसीट्स में रख देंगे। किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी हुई, फिर हम इनको बेसिडियोकार्प्स में रख देंगे, बेसिडियोमाइसीट्स में रख देंगे। अगर हमें इनके सेक्सुअल फेज हमें कोनिडिया वाली फेज एस्कोस्पोर्स वाली फेजेस हमें इसको पता चल गई हैं कि इस तरीके से एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि एंडोजिनसली लगे होते हैं एस्काई पर, तो अगर ये पता चल गया तो हम इसको एस्कोमाइसीट्स में रख देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ना उसमें रखा ना उसमें रखा, हमने डायरेक्ट में डिट्यूरोमाइसीट्स में रख दिया। तो जब इनकी पता चल जाती है, तो हम इनको उसी की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग कर देते हैं। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज have been given an one name and placed under डिट्यूरोमाइसीट्स। ठीक है, सिर्फ इनकी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही हमें पता है, इसलिए हमने इसको रख दिया था डिट्यूरोमाइसीट्स में। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास। अगर हमें इनकी सेक्सुअल फेज पता चल जाए, तो हम इनको अलग क्लास में रख देते हैं, क्योंकि हमें सेक्सुअल फेज ही नहीं पता, इसलिए हमने इनको डिट्यूरोमाइसीट्स के अंदर रखा, क्योंकि हमें पूरा नहीं पता। Later when the linkage was established, the fungi are correctly identified and move out of डिट्यूरोमाइसीट्स। जैसे इनकी फेजेस के बारे में अगर हमें पता चला सेक्सुअल फेज का, तो हमने इनको अलग कर दिया, क्योंकि पता चल जाता तो अलग कर देते हैं, नहीं चलता तो हम इसको अलग नहीं कर पाते, तो इसलिए ये इम्परफेक्ट है, इनकम्प्लीट है। वंस परफेक्ट यानी सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes। अगर इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज काम करने लगती है, वो सेक्सुअल तरीके से काम करने लगती है, तो इसके जो मेंबर हैं वो अपनी बॉडी को मतलब इस तरीके से कर लेते हैं कि या तो वो एस्कोमाइसीट्स वाली कंडीशन करने लगते हैं, लाइफ साइकिल यूज करने लगते हैं, या फिर वो बेसिडियोमाइसीट्स वाली लाइफ साइकिल यूज करने लगते हैं। मीन्स कि कहने मतलब ये है कि अगर इनकी सेक्सुअल फेज आ जाती है, अगर सेक्सुअल फेज इनकी आ जाती है, तो या तो ये एस्कोमाइसीट्स में चले जाते हैं, उनकी कैरेक्टर्स शो करने लगते हैं, या ये बेसिडियोमाइसीट्स की कैरेक्टर्स में चले जाते हैं। मीन्स कि डिट्यूरोमाइसीट नहीं रहते। ओके, सो यहाँ पर लिखा है कि ये मूव हो जाते हैं एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स में। ओके, द डिट्यूरोमाइसीट रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनको हम बोलते हैं कोनिडिया। सिर्फ इनके पास एसेक्सुअल स्पोर हैं, जो कि है कोनिडिया। द माइजीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, बिल्कुल उन्हीं के जैसा इनका माइजीलियम है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, व्हाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर
decomposers of litter and help in the mineral cycling। ये साइक्लिंग मिनरल जो साइक्लिंग करते हैं सॉइल के अंदर तो उस चीज़ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो याद रखना ड्यूटेरोमाइसीट्स क्या है, इम्परफेक्ट, क्योंकि इनकी साइकिल पता नहीं होती। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल इनकी पता चल जाती है, ये करने लगते हैं, तो ये फिर या तो एस्कोमाइसीट्स में चले जाती हैं या फिर ये बेसिडियोमाइसीट्स में चले जाते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे चारों की चारों क्लासेस। सो ये हमारा सेशन यहीं पर just it is going to be end here। so thank you so much, stay home, stay safe। बाकी अगर वीडियो लाइक की हो, आपको पसंद आई हो, एंजॉय किया हो, so you can like, you can subscribe, you can share to my channel। so thank you so much, stay home, stay safe।